Hello students, welcome to the exam idea classes. In our previous videos, we have discussed about the human reproductive system as well as we have discussed about the menstrual cycle. Now we'll start the new topic, that is the fertilization and implantation. As we know very well, for the fertilization there is a requirement of male and female gamete. Suppose अगर कोई भी gamete present नहीं हुआ, so there will be no fertilization. It's obvious, ये obvious है. अगर कोई भी एक male या female gamete present नहीं होगा, so there will be no fertilization. As we know very well about the fertilization takes place into the ampullary isthmic junction of the fallopian tube, that is our oviduct, जो आपका oviduct के अंदर होता है. So let's start with the diagram of a fallopian tube. This is the fallopian tube. I'm making the half structure. This is the endometrium and here is the ovary. So what we are observing, ovary will releases a egg. Ovary आपकी egg release करेगी. These are fimbri like structures. ये आपकी fimbri प्रेजेंट होती है, बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपके एग को कैप्चर करेगी. दिस इज द वे ऑफ एंट्री ऑफ योर स्पर्म. यहाँ से स्पर्म आपका एंटर कर रहा है एंड दिस इज द एम्प्यूलरी isthmic junction of the fallopian tube where the fertilization takes place, जहाँ पर आपका fertilization होता है in the ampullary isthmic junction. So the process of fusion of sperm with ovum is called fertilization. During coitus, that is the copulation, semen is released into the vagina. Semen in which the sperm will be present. Semen is the viscous, cloudy, we can say the cloudy structure, cloudy material. So जिसके अंदर present होते हैं sperm and they will enter inside the female body with the help of the penis. So the ovum also reaches there and fusion of gametes takes place into the ampullary isthmic junction. Ampullary isthmic junction के अंदर आपका होता है fertilization. After the fertilization, as we know very well, so there will be the formation of a zygote. यहाँ पर zygote का formation होता है. In this, acrosome of sperm undergo acrosomal reaction. In the starting, we have discussed the structure of the sperm. Sperm के head पर एक cap like structure present होता है, that is known as acrosome, जिसके अंदर बहुत सारे आपके enzymes present होते हैं. So this is the egg, this is the head of the sperm and this is the acrosome. और यहाँ acrosome में this is the एक्रोसोम. इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बहुत सारे एंजाइम्स, दैट इज नोन एज द हाइलोनिड्रेज एंजाइम, जो आपकी एग की लेयर, अब कौन सी लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जो एग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको आपने कहा जोना पेल्यूसिडा. और यहाँ पर आपके दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल ऑब्जर्व, जिसको आपने कहा कोरोना रेडिएटा. दिस इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. सो जो आपकी जोना पैल्यूसिडा है, दिस इज वेरी थिक स्ट्रक्चर. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर इज योर जोना पैल्यूसिडा. सो इन दिस acrosome of sperm undergo acrosomal reaction and releases certain sperm lysins. Sperm lysins, sperm lysins का मतलब है these are the some substances that will be released from the acrosome and they dissolve the egg envelopes. जो egg के envelope को, अब basically egg का envelope क्या हो गया, egg का envelope है आपका zona pellucida and makes the path for the penetration of sperm. जो sperm के penetration के लिए एक path का formation करेगा. path के formation की बात अगर करते हैं, so ये जैसे हमारे egg का structure है, this is the structure of egg
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग. नाउ द स्पर्म, ये जो होता है यहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा. सो जब यहाँ कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, सो किसकी वजह से हो रहा है कोन लाइक स्ट्रक्चर? जो आपका स्पर्म लाइसिस जो होते हैं, जो रिलीज होते हैं आपके एक्रोसोम से, जो डिसॉल्व करते हैं इस एग की लेयर को, और यहाँ से जो आपका स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है, सो यहाँ पर आपका एग का जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज द sperm genetic material. Only the genetic material will enter inside the egg, so help in the penetration of the sperm. These sperm lysins contain a lysing enzyme hyaluronidase. This is very important. जो आपके किसको डिसॉल्व करेगा? which dissolve the hyaluronic acid polymers in the intracellular spaces which holds the granulosa cells of corona radiata together. As I have told about the corona radiata, जो यहाँ पर आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी, उनको जो है ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. बेसिकली कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम दैट डिसॉल्व्स द कोरोना रेडिएटा, जो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा. एंड एक्रोसिन, एक्रोसिन क्या है आपका? एक्रोसिन दैट योर एंजाइम जो आपके जोना पैल्यूसिडा को डिसॉल्व करता है. देन इट डिसॉल्व द जोना पैल्यूसिडा. सो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए आपके प्रेजेंट होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है. और जोना पैल्यूसिडा को डिसॉल्व करने के लिए आपके पास प्रेजेंट है एक्रोसिन. अब ये कहाँ से निकल रहे हैं? दीज ऑल आर कमिंग फ्रॉम द एक्रोसोम. और एक्रोसोम क्या है आपका? एक्रोसोम दिस इज द हेड ऑफ योर स्पर्म. ये आपके स्पर्म का हेड है. अब जैसे ही स्पर्म का हेड टच करता है एग को, वहाँ से उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज होकर किसके अंदर आ जाएगा? द जेनेटिक मटेरियल विल बी रिलीज एंड गेट इनसाइड द, किसके अंदर आ जाएगा? आपका एग के अंदर एंटर करेगा. सो नाउ विल डिस्कस कि व्हाट विल हैपन. ओके, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ ये आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है. ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. ये आपका जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. जायगोट की पोलैरिटी है आपकी 2n इन नंबर, बिकॉज एग की पोलैरिटी होती है आपकी n इन नंबर, स्पर्म की पोलैरिटी होती है आपकी n इन नंबर. तो दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है दैट विल फॉर्म द 2n जायगोट. सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ दिस जायगोट will undergo mitotic division. The cell will not divide, only the nucleus will divide. यहाँ पर आपका nucleus divide करेगा and it will form the two nuclei structure. This is known as blastomere. इसको आपने blastomere बोला. Then these cells again will undergo mitotic division and it will form the 4-celled stage. ये फिर आपकी एक 4-celled स्टेज का फॉर्मेशन करेगा. एंड आफ्टर दिस देन अगेन देयर विल बी द माइटोटिक डिवीजन एंड इट विल फॉर्म द 8-celled स्टेज. दिस 8-celled स्टेज इज नोन एज मोरुला. बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि मोरुला जो है आपका उसमें कितने सेल्ड स्टेज हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके 8-celled स्टेज विल बी देयर. अब ये जो आपका 8-celled स्टेज है, ये जो सारे इवेंट हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं? दे आर इनटू द फिलोपियन ट्यूब. ये सारे इवेंट्स आपके फिलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं, क्योंकि जब फिलोपियन ट्यूब में हुआ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इनटू द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, जब आपका एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में हुआ फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट, दिस जायगोट विल मूव टूवर्ड्स द यूटरस. ये यूटरस की साइड में आना स्टार्ट करेगा. क्यों करेगा यूटरस की साइड में आना? क्योंकि यहाँ पर यूटरस के अंदर ही तो इस जायगोट का क्या होगा? इम्प्लांटेशन. मोरुला के फॉर्मेशन के बाद में नाउ देयर विल बी द देन अगेन द माइटोटिक डिवीजन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ
8 to 16 सेल्ड स्टेज, एंड 16 सेल्ड स्टेज के बाद में यहाँ पर आपकी 32 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। जब 32 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन होगा, कभी आपका 64 का भी हो जाता है, तो ये जो आपकी जितनी भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ब्लास्टोमियर्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ब्लास्टोमियर किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं? ये आपकी जो है एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। सो दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज योर ब्लास्टोसिस्ट और दिस इज नोन एज ब्लास्ट्यूला। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी स्टेज है जो आपकी यूटरस के अंदर इम्प्लांट करेगी। तो यूटरस के अंदर इम्प्लांट करता है आपका ब्लास्ट्यूला। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्लास्ट्यूला। जो आपकी सेल्स हैं, तो सेल्स आपकी कुछ इस तरह से अरेंज करती हैं। सम ऑफ द सेल्स विल मूव टूवर्ड्स द पेरिफेरी। कुछ सेल्स आपकी कहाँ पर पहुँच जाएंगी? टूवर्ड्स द पेरिफेरी, एंड दीज सेल्स आर नोन एज trophoblast, and these are some cells which are arranged towards the animal pole. This is known as, ये जो आपकी सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको आपने बोला इनर सेल मास। ये आपकी इनर सेल मास होती हैं, एंड दिस इज अ कैविटी जिसको आपने कहा blastocele, and this structure is known as blastocyst or blastula. As this structure will enter into the uterus, जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपकी यूटरस के अंदर एंटर करेगी, तो यूटरस में एंटर करने के बाद जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं, they will form some finger like projections that is known as the chorionic villi. Suppose this is the wall of the uterus, that is the endometrium, and this is the fetus wall, जिसको हम ये कह रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट की जो हमारी वॉल है. So there will be some finger like projections that is known as the chorionic villi, and they will interdigitate with each other like this. ये इस तरह से interdigitate हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे, और जैसे ही ये अटैच हो जाएंगे इनसाइड द यूटरस, यहाँ पर ये देखिए आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, जब ये यहाँ पर आकर आपकी इंटरडिजिटेट हो जाती हैं, सो देयर विल बी द लीडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, और फिर यहाँ पर प्रेगनेंसी लीड कर जाती है. नाउ हैव अ लुक कि हमारा जो यूटरस के अंदर जो हमारा प्रेगनेंसी जो है वो किस तरह से हमारी डेवलप करेगी. So pregnancy and embryonic development. The finger-like projection on trophoblast after implantation called is chorionic villi, and that along with the uterine wall forms a functional unit between the developing embryo and the maternal body called प्लेसेंटा. बेसिकली प्लेसेंटा क्या है आपका? प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी कहाँ पर बन रही है? दिस इज द यूटरस, दिस इज द एंडोमेट्रियम. यहाँ पर अब आपका क्या हो जाता है? ये फीटस यहाँ आता है, एंड दीज आर द कोरियोनिक विलीज. These are the chorionic villis that will interdigitate with the wall of the endometrium, and here will be a disc like structure. ये disc like structure है, disc like structure. This is known as placenta. So what is the function of the placenta? Placenta का क्या function है? सबसे important function है placenta का कि ये जब आपका अटैच हो जाता है फीटस के साथ विद द एम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ एक बीच में जो है लाइक दिस इज द प्लेसेंटा. ये आपका प्लेसेंटा है. अब यहाँ पर क्या है आपकी? दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड, एंड ये हो गया आपका फीटस. ये फीटस है इस तरह से. सो दिस प्लेसेंटा विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव मटीरियल फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग फीटस. क्योंकि जब फीटस मदर के वूम्ब में अप टू द 9th मंथ डेवलप करेगा तो उसको तो फूड की रिक्वायरमेंट है.
अब फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो जो फूड मदर खाएगी, जो ऑक्सीजन मदर लेगी, सो दैट विल गो इनटू द फीटस। ऑब्वियसली वो कहाँ पर चला जाएगा, फीटस के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो द प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद द फीटस with an umbilical cord that transport food and oxygen to embryo. Here is a very important question कि what is the function of the placenta other than the transport of the nutritive material and oxygen. So basically this placenta will plays an important role as an endocrine gland. As we know very well about the endocrine glands will secrete the hormones, different kinds of hormones will be secreted from the endocrine gland. So here जो आपका placenta है that will also secrete different kinds of the hormone during the pregnancy only, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज जो आपका प्लेसेंटा है दैट विल बी नॉट डेवलप इनटू द फीमेल बॉडी. सो हार्मोन, सो विच हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड? वन इज योर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, and one more, this is the relaxin hormone which are produced in women only during pregnancy by the placenta. आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जब ये आपका फीटस इम्प्लांट कर जाता है इनसाइड द यूटरस, तो ये जो इसकी बाहर की जो लेयर है, हमने कहा ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है. ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती हैं वो आपकी कोरियोनिक विली बना रही हैं. तो जो बाहर की लेयर्स होती हैं, तो बाहर की लेयर्स क्या बनाएंगी आपका, दे विल इंटरडिजिटेट इनटू द एंडोमेट्रियम. और जो इनर सेल मास होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इनर सेल मास प्रेजेंट होती हैं, ये पूरे के पूरे फीटस को आपके डेवलप करती हैं. सो आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास दैट इज योर एम्ब्रियो. एम्ब्रियो आपका डिफ्रेंशिएट किस में करेगा? दिस विल बी डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर कॉल्ड द एंडोडर्म. हमने सुना है और हमें मालूम भी है, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, सो ह्यूमन बींग्स पे जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है देयर विल बी द 3 जर्म लेयर्स. 3 जर्म लेयर्स होती हैं जिससे पूरा का पूरा फीटस आपका डेवलप करता है. दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक आपकी लेयर दैट इज नोन एज द मीजोडर्म. तो सबसे पहले आपका एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा, फिर आपका इनर लेयर एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा. इन दोनों लेयर्स के फॉर्मेशन के बाद में देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ a mesoderm. So a mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. These 3 layers give rise to all tissues or organs in an adult. That means पूरा का पूरा जो फीटस और एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? तीनों आपकी स्किन, that means derm. Derm means layer से होगा. And it is important to note that the inner cell mass contain stem cells. ये जो आपकी इनर सेल मास है इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं. और ये जो स्टेम सेल्स होती है इनके अंदर पूरी पोटेंसी होती है कि ये एक अगर स्टेम सेल प्रेजेंट है तो ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं. दैट विल फॉर्म द फुल एम्ब्रियो, सो विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. In humans, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. Embryo के heart का formation होता है, and after the 2nd month, the limbs and digits are formed. Limbs का मतलब है हाथ पाँव, आपके 4 limbs and hind limbs, और ये जो digits होती है that means the fingers जो होंगी उनका development होगा after the 2nd month. By the end of 12 months, जो आपके major organs हैं that is external genitalia are developed. The first movement of the fetus is observed in 5th month. जो fetus फीमेल की यूट्रस के अंदर जब डेवलप करता है तो उसके अंदर एक मूवमेंट होता है. तो वो जो मूवमेंट होगा वो किस मंथ के बाद होगा? आफ्टर द 5th month. By the end of 24 weeks, body is covered with a fine hairs, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होंगे बॉडी के ऊपर. eyelids will be developed, eyelashes are formed,
एंड एट द एंड ऑफ द 9 month फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, और फीटस जो है 9 month के बाद में 9 month तक आपका फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये जो 9 month की जो प्रेगनेंसी होती है, दिस process is known as, or the time period is known as gestation period, that is the 9 month pregnancy. Now we will discuss about the parturition. So parturition means after the 9 month of pregnancy there will be the delivery of the baby, कि किस तरह से जो है डिलीवरी होगी बेबी की। सो एज वी आर सीइंग, दिस इज द एम्ब्रियो, ये आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज द प्लेसेंटल विली, एंड इस प्लेसेंटल विली जिसको आप कोरियोनिक विलीज बोलते हैं, तो ये जो कोरियोनिक विलीज हैं, ठीक है, दे आर इंटरडिजिटेट विद द एम्ब्रियो एंड द यूटेराइन वॉल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्यूरेशन। Parturition, basically the process of delivery of fully developed fetus is called parturition. जब एक पूरा fetus आपका fully develop हो जाता है, उस process को parturition बोलते हैं। Parturition जो आपका initiate होगा, वो किससे initiate होगा? Basically from the developing fetus। तो signal एक आएगा, signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta। प्लेसेंटा से, और जो पूरा फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है उससे आपका क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा, उस सिग्नल को आपने कहा बेसिकली, सो दैट इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस के इजेक्शन का मतलब है बाहर आना, रिफ्लेक्स का मतलब है सडन, सो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये होता है आपका, देयर इज अ हार्मोन दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन will be secreted from the pituitary gland। जैसे आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, so there will be a signal sent to the pituitary gland and the pituitary gland will secrete a hormone that is known as the oxytocin। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा इनटू द यूट्रस। सो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन देन ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करने के लिए। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो द ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम maternal pituitary। we have to notice this point, maternal pituitary का मतलब है मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होगा वो ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज हो जाता है, एंड देन देयर विल बी द रिलीज ऑफ द, और वी कैन से द इजेक्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द दिस पॉइंट। द mammary gland of female start producing milk to the end of the pregnancy by the process known as lactation। इसको आपने कहा lactation, and the milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum। इसको आपने colostrum बोला, which contains several antibodies। that is why it is said कि जब कोई भी बेबी जो होता है पैदा होता है तो उसको अपनी मदर का जो है अप टू द 6 month जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, बिकॉज ऑफ द दिस colostrum। दिस इज द येलो कलर्ड मिल्क इन विच सेवरल एंटीबॉडीज विल बी देयर। एंड एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि जो आपका अब जो इन्फेंट है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। So we have finished this chapter, the human reproductive system।